شروع کرتا ہوں یشوع ہا مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے شامل بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ تمام ان ساتھیوں کو جو فرینڈشپ ایونجلزم میں مصروف ہیں، سلام، کیونکہ ایونجلیکل فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم کا یہ گول ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے، تھوڑا بہت، ایک کپ پانی کا، ایک کپ چائے کا، ایک کپ دودھ کا، ایک کینو، ایک کچھ فروٹ، کسی کو کھلا کر، کسی کے پاس بیٹھ کر اس کو انجیل کا ٹیکہ لگائیں، انجیل کو پھیلائیں۔ انجیل جو ہے خوشخبری ہے، اور خوشخبری جو ہے وہ مسیح ہے۔ تو آپ بھی اس پریکٹس کو شروع کریں۔ تو آج میرے سامنے جو کلام مقدس میں خاص بات ہے وہ ہے عورت کے تعلق سے، کیونکہ جب ہم عورت کے بارے میں سنتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ایشیا میں مختلف ویو سے بات کی جاتی ہے، جبکہ بائبل مقدس بھی ایشیا ہی سے شروع ہوئی اور خدا کا منصوبہ ایشیا سے شروع ہوا، اور باغ عدن بھی ایشیا ہی میں لگایا گیا، اور پھر یہ ہے کہ ایشیا کے رسم و رواج بائبل کے تعلق سے ایکول ہیں۔ جو کچھ بائبل میں لکھا ہے وہ ایشین لوگ بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، جس کی مثال انڈیا، پاکستان یا مڈل ایسٹ ہے، چائنا، جاپان۔ تو یہ سارے جو ایشین ممالک ہیں وہ بخوبی اس کی زبان کو اور اس کے طرز کو، اس کے رسم و رواج کو سمجھ سکتے ہیں۔ لفظ جو عورت ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور جس کا مطلب ہے ناری، اور جس کا مطلب ہے مرد کے ساتھ کھڑے ہونے والی۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب پڑھتے ہیں، اس کی 18ویں آیت میں تو لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خداوند خدا نے کل دشتی جانوروں اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا، اور آدم نے کل چپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی، اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکالا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لے آیا۔ لفظ جو خدا نے مددگار کے طور پہ رکھا ہے وہ ہے عورت۔ ہوا آدم نے اس کا نام رکھا تھا۔ ہوا کے مختلف مطلب ہیں، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مددگار ہے، اصطلاحی مطلب ہے، لغوی مطلب ہے، محاوراتی مطلب ہے۔ اور جو لغوی مطلب ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد کی مددگار ہے، اور اصطلاحی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی اور مرد کی خوبصورتی ہے۔ اگر مرد اکیلا ہے تو وہ خدا کو پسند نہیں آیا، تو خدا نے کہا کہ میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ گویا کہ خدا نے اس کی خوبصورتی کو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے عورت لے کے آیا۔ اب لفظ جو عورت ہے
इस पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि बाइबल ये कहती है कि सांप आया और उसने वर्ग लगाया हवा को, और हवा ने वो फल लिया। अगर हम इसको पॉजिटिवली मुस्बत तरीके से बात करें तो आप सांप की बातों को सुने और औरत की बातों को सुने तो आपको पता चलेगा कि औरत ने कितना बड़ा डिसीजन लिया है, कितना बड़ा फैसला किया है अपने शौहर के बगैर, यहां तक कि खुदा की सलाह के बगैर एक बड़ा फैसला किया। उसको आप नाफरमानी कह लो, या उसको खुदसरी कह लो, या उसको एक फिक्रमंदी कह लो, या एक लालच कह लो, या एक कुर्बानी कह लो, कि उसने कितना बड़ा फैसला लिया है। और वो है कि उसने अपने खानदान के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने शौहर के लिए पहला काम किया, जो बहुत बड़ा काम है, जो हमारी नजर में, खुदा की नजर में आम तौर पे कहा जाता है कि उसने नाफरमानी की और गुनाह किया। लेकिन मेरे व्यू से, मेरी सोच से ये बात है कि खुदा को उसकी इस फिक्रमंदी को, जो बज़ाहिर नजर नहीं आती, खुदा ने उसकी कदर की, और वो है कि खुदा को रहम आया और खुशी हुई और पसंद आया कि उसने अपने खानदान के लिए कितना बड़ा इनिशिएटिव लिया। आप मेरे साथ कलाम मुकद्दस को अगर खोलें तो अच्छा है कि आप साथ साथ पढ़े, ताकि किसी के जहन में कोई ऐसी बात ना आए जो गलत फहमी पैदा करे। मैं आजादी के साथ कहता हूं, किसी को थियोलॉजिकली तौर पे, इल्म इलाही के हिसाब से, या लुगवी तौर पर, या जो रसूमाती बात है उसमें अगर कोई ऐसी बात लगे जो मैं बयान नहीं कर सका या मैं उसको क्लियर नहीं कर सका, तो वो जरूर मेरे साथ राब्ता करे, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी, मैं इल्मो कुल नहीं हूं, लेकिन सीखने सिखाने के तलक से हम बात कर सकते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो बात साफ हो जाती है, लेकिन गलत फहमी रख के अपने अंदर कड़वाहट ना रखें, क्योंकि ये खुदा के लोगों का शेवा नहीं है। अभी कल मैंने ये कुछ लिखा था, मेरे फेसबुक पे है, कि जिसको ऊंचा दिखाने की अंदर आरजू है उसको ऊंचा कर दो, लेकिन जो उसको ऊंचा नहीं कर सकता वो भी बड़ी हील वाली, बड़ी एडी वाली जूती पहन ले। क्योंकि औरत भले 6 फुट की हो, 6.5 फुट की हो, फिर भी वो 4 इंच की हील पहनती है। वो चाहती है कि नुमाया नजर आए, बड़ी नजर आए। ये औरत की फितरत है। शायद आप लोगों ने भी देखा हो, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैं आपके सामने रखता हूं, कि वो बड़ी, अपने आप को, छोटी सी हमारी बेटियां जो हैं उनको भी आप देखें कि वो बड़ी हील वाली, भले वो 4 साल की हो, अपनी अम्मी की जूती पहन लेती, क्योंकि वो चाहती है कि बड़ा दिखाई दे। ये औरत की फितरत में है, और ये उसकी फितरत हमें बागे अदन में दिखाई देती है। पढ़िए जरा हवाला मेरे साथ, ये पैदाइश की किताब और उसका 3रा बाब, उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है
कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने ये देखा। अब यहां पर देखो कि खुदा की मानिद बन जाओगे, ऊंचे बन जाओगे, बड़े दिखाई दोगे, नुमाया दिखाई दोगे। ये औरत की फितरत में शामिल है, लेकिन वो सारा कुछ अपने लिए नहीं करती। हमारी माएं भी हैं, बहनें भी हैं, हमारी बेटियां भी हैं, बीवियां भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। रिश्तेदारों में बड़े, एक औरत के साथ बड़े रिश्ते हैं। आप देखो उनको कि वो बेचारी क्या करती हैं। घर में सबसे कम खाती हैं, सबको खिलाकर बाद में खाती हैं। सब कुछ वो करती हैं किस लिए? कि मेरा खानदान, मेरा शौहर, मेरा हस्बैंड या मेरा बेटा या जो मर्द है या उसका जो खानदान है जिसके साथ वो मुंसलिक है, वो नुमाया दिखाई दे। क्योंकि इब्लीस ने उसको कहा था कि तुम खुदा की मानद बन जाओ। हर वक्त में, शादी हो या कोई तकरीब हो या कोई मेला हो या कुछ भी हो, औरत अपने खानदान को नुमाया करना चाहती है। मैंने देखा है कि औरतें वो अपने बच्चों को खुद प्लेट में खाना डाल डाल के दूसरों को दे रही होती हैं ताकि मेरे बच्चे भूखे ना रह जाएं, मेरा शौहर भूखा ना रह जाए। ये एक वो एरिया है जिस पर अक्सर जो खादमुल दीन है या जो प्रचारक हैं या जो मनादी करने वाले हैं या जो एवेंजलिस्ट हैं, वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि औरत ने ये इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा इनिशिएटिव जो लिया है, वो किसके लिए लिया है। औरत को बुरा कहना आसान है, लेकिन उसने ये किया क्यों है? और फिर जब हम इस मां मरियम को देखते हैं तो अदन में इब्लीस आया औरत के पास, और नासरत में खुदा का खास फरिश्ता आया मरियम के पास। हवा ने, जिसका नाम और जिस औरत का नाम आदम ने हवा रखा था, हवा का मतलब अगर देखा जाए तो हिब्रू जुबान में, अब्रानी जुबान में ये होव से है जिसका मतलब है दिया जाना, या होब से है जिसका मतलब है मोहब्बत, या होव से है जो देना है। जो तूने मुझे दी, जो मोहब्बत तूने मुझे दी है, जो सांस तूने मुझे दिया। मर्द जो है वो औरत के साथ बेशक कई मुश्किलात भी होती हैं, लेकिन वो ज्यादा अपने आप को रिलैक्स फील करता है, क्योंकि ये खुदा ने उसके अंदर ये कमी को पूरा करने के लिए साथी दिया है। और अगर औरत मर्द के साथ नहीं, शादी के बगैर है तो वो और बात है, लेकिन अगर शादी हो जाती है तो फिर ये दोनों का इसीलिए कहा गया है कि वो दोनों इकट्ठे रहेंगे। जब हम मरियम की बात देखते हैं तो देखें कि उसके पास इब्लीस नहीं आया, उसके पास खुदा का खास फरिश्ता आया है, जब्राइल आया है। और जब्राइल ने कहा कि तेरे बेटा होगा और वो खुदा का ममसू होगा, जिसके वसीला से कौम बच जाएगी। तो आप अंदाजा करें, इसी औरत ने कौम को बचाने के लिए यहूदियों का पथराव होना, लोगों के सामने बदनाम होना, अपने कुंवारपन की कुर्बानी देना, अपने आप को पेश कर देना के बेइज्जती के लिए, ये मरियम ने कबूल कर लिया। उधर हवा ने, औरत ने खुदा की नजर में जलीलो ख्वार होना और अपने आदमी के सामने बेइज्जत होना कबूल कर लिया, ताकि उसका खानदान, उसकी आगे औलाद, उसकी नस्ल खुदा की मानद हो।
उधर मरियम को आप देखें कि वो क्या करती है कि वो पूरे तौर पर अपने आप को पेश कर रही है कि ठीक है। उसको पता था मरियम को, वो 14 साल की थी जब फरिश्ता उसके पास आया, तो उसको पता था कि जब यहूदियों को पता चलेगा इस बात का जो नशर हो जाएगी ये खबर, तो लोग मुझे पथराव कर देंगे, मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती होगी, मेरा घर पूरे एरिया में बेइज्जत हो जाएगा। लेकिन जब फरिश्ते ने कहा कि उसके वसीला से कौम बचेगी, तो उसने अपनी कुर्बानी, अपनी बलि देने के लिए खुद को पेश कर दिया। कहा जो कुछ तेरी मर्जी है वही पूरी हो। इस बात को देखें, औरत ने अपनी जात के लिए कभी कुछ नहीं किया, हमेशा वो करती है जिसके लिए दूसरों को फायदा हो। और फिर आप तीसरी औरत को देखें, और वो है दबूरा। आप उसको देखो, वो लड़की को, कि एक ऐसा टाइम आ गया जब बनी इस्राएल चारों तरफ से घेरे गए थे, और अब ये मौका था कि वो फिलिस्तियों के हाथ से खत्म हो जाए। हित्ती, फिरजी, यबूसी, ये सारे के सारे मिलकर अटैक करते थे बनी इस्राएल पर, और सारी कौम सहमी हुई थी, दबी हुई थी। और ये कौम की बेटी मैदान में आ गई अपनी कौम के लिए। हवा ने अपने खानदान के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जो वक्ती तौर पे दुख का बायस था, लेकिन खुदा को उसकी फिक्रमंदी से पता चला कि अगर औरत ने फिक्रमंदी की है कि मेरा खानदान बच जाए, लेकिन इसने गलत फैसला किया है, इसने बहुत बड़ा गलत फैसला किया है कि इसने मेरी मर्जी के खिलाफ वो कदम उठाया और इब्लीस की बात मानी। लेकिन इसकी इस फिक्रमंदी की खुदा ने कदर की और औरत की नस्ल में ही मरियम को ले आया। और वो मरियम जो है वही उस औरत की, हवा की कौम को, नस्ल को, बच्चों को बचाने के लिए यीशु पैदा हुआ। अब ये देखे कि दबूरा अपनी उस कौम बनी इस्राएल को, जो वादे की कौम है, उसको बचाने के लिए उस टाइम इतना बड़ा कदम उठाया। 15 खूबियां हैं दबूरा में। वो एक बेटी है, वो एक मां है, वो एक बीवी है, वो एक शायरा है, वो एक जर्नल है, वो एक नबिया है, वो एक इनकरेज करने वाली शख्सियत है, लीडर है, वो एक काउंसलर है, वो एक मुनसिफ है, काजी बन गई, वो एक जंगजू औरत है, लड़ाकू है। आप गिनते जाएं, एक बेटी के अंदर, एक औरत के अंदर अपनी कौम के लिए कितनी खूबियां हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आज इस बात के लिए आप सबको इनकरेज करता हूं कि औरत के किरदार को इस तरह से ना दबाएं कि एक ही बात उस पर फिट कर दें कि औरत के सबब से गुनाह आया। ये खुदा का मामला है कि वो किसको गुनहगार साबित करता है, किसको मुजरिम ठहराता है, औरत के बारे में क्या कहता है। लेकिन अगर मैं बाइबल की औरतों के बारे में बात करूं तो बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ मैं तीन औरतों का आपके सामने जिक्र करना मकसूद समझता हूं। पहली औरत जो आदम की मददगार बनी, दूसरी औरत जो दुनिया को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, और तीसरी औरत दबूरा जिसने अपनी कौम के लिए अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया। और अगर दूसरी बहुत सारी बाइबल की औरतें हैं,
जिनके बारे में मैं जिक्र कर सकता हूं, लेकिन किसी दूसरे वक्त में बात करेंगे। लेकिन मैं इस बात के बारे में आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जो हमारी बेटियां चर्चेज में हैं, वो दबी रहती हैं, सोचती रहती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। उनको मैं इस बात के लिए इनकरेज करता हूं कि इंसान ने, आदम ने हवा को नहीं दबाया, किसी ने भी औरत को नहीं दबाया, खुदा ने भी उसको मुजरम नहीं ठहराया। आप देखो मगदलीनी को, उसने गलतियां की हैं, लेकिन यस्सु ने उसको बहाल कर दिया। हम बाजार कस्टम के हिसाब से या रवायती तौर पे या रसूमात के हिसाब से या सकाफतो तमद्दन के हिसाब से हम औरत को और हिंदू रस्म रिवाज में या और दूसरी बातों में आके उसको दबाते हैं, लेकिन बाइबल नहीं दबाती। बाइबल ने औरत को बड़ी इज्जत दी है। दुनिया में वाहिद एक किताब है और यह है कलाम मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस, जिसने औरत को बहुत ज्यादा इज्जत दी, मर्द से भी ज्यादा इज्जत दी। देखिए कि आदम को उसने बनाया, लेकिन कहा यह कंप्लीट होगी औरत की वजह से, इसकी इज्जत कंप्लीट होगी औरत की वजह से, इसकी खुशी कंप्लीट होगी औरत की वजह से, आदम कंप्लीट होगा औरत की वजह से, और खुदा का मंसूबा कंप्लीट होगा औरत की वजह से। खुदा ने जितने फरिश्ते बनाए हैं, उन सब में जो सिफात है, मोस्टली जो सिफात है, खूबसूरती के लिहाज से, सेंसिटिविटी के लिहाज से, हिसास होने के लिहाज से, फिक्रमंद होने के लिहाज से, वो औरत के साथ मुशाबत है। आप देखें कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए हैं, तो तबलीग करने का जो पहला रिकॉर्ड किया गया है, जो हक दिया गया है, जो आजादी दी गई है, वो मगदलीनी को और मां मरियम साथ थी, उनको कहा गया जाओ जाके बताओ कि यीशु जिंदा हुआ है, जाओ जाके बताओ कि मैं जिंदा हूं, मैं भाइयों को मिलूंगा फलां जगह पे। मुर्दों में से जिंदा होने की जो खुशी की खबर है, जो खुशखबरी है, वो सबसे पहले औरत को मिली। आज भी औरत बाइबल टीचर हो सकती है, औरत चर्च के इंतजामात में आ सकती है, औरत एवेंजलिस्ट हो सकती है, औरत एक काउंसलर बन सकती है चर्च में, जैसे दबूरा ने बहुत बड़े काम किए, वो भी हो सकते हैं, लेकिन औरत पास्टर नहीं हो सकती। क्योंकि अगर पास्टर होती तो यीशु मसीह जरूर मरियम मगदलीनी को या दूसरी औरतों को भी कहते कि मेरी भेड़ें चराओ और मेरे बरे चराओ। जो औरत कर सकती है, जिस बात का फैसला जैसे हवा को कहा गया कि ये ना करना और उसने कर लिया, तो खुदा को उसके लिए इंतजाम करना पड़ा। इसी तरह से खुदा ने किसी जगह पे भी, पिछले दिनों जब मैं मैसेज दे रहा था तो किसी ने मुझे कहा कि जी यीशु खुदा नहीं है। मैं उस भाई का जवाब अभी देना चाहता हूं। वो बहन थी या भाई थे, पता नहीं कौन थे, क्योंकि ऊपर उन्होंने अपनी डीबी पे तस्वीर कोई कार्टून सी लगाई हुई थी। तो ये है कि पहले तो अपने, अगर किसी को इस बात का बड़ा ही शौक है कि अपने इंटरनेशनल मीडिया पे आ जाए, तो अपनी तस्वीर लगाया करें। ये कार्टूनों की तस्वीर ना लगाएं, खुद तो आप कार्टून बन जाते हैं, दूसरों को भी ना कार्टून बनाएं। और दूसरी बात यह है कि जब सवाल करते तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कोशिश करें कि उसके लिए स्टडी करें। मीडिया पे बेअकली का सवाल करके खुद बेअकल ना बने। लफ्ज गॉड जो है या खुदा जो है, इसका मतलब है देवता।
और देवता वो होता है जिसको पूजा जाए। तो मैं इस बात को अक्सर अपने कुछ अजीजों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं कि मैं जिसको ब्लेस करता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि मे गॉड ब्लेस यू, मैं लिखता हूं माय गॉड यशुआ नासरी ब्लेस यू। क्योंकि मेरा देवता, मेरा खुदा जिसको मैं मानता हूं वो यीशु नासरी है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। जिसको हम मानते हैं वो हमारा देवता है। और देव का मतलब, ये हिंदी जुबान का लफ्ज है देव, जिसका मतलब है बड़ा। देवता जिसको बड़ा माना गया है। तो इसलिए लफ्ज खुदा फारसी जुबान का लफ्ज है। और ये खद, गड और जद से निकला है। ये अरामी, सुरामी और इराकी जुबान में, फिर फारसी जुबान में आया। तो इस तरह ये जुबान बदलते बदलते फारसी में ठहर गया कि आके ये खुदा बन गया। तो इसलिए मेरे अजीजों, कोशिश करें कि ये बाइबल जो है, ये मुझे किसी ने कवर दिया बड़ा अच्छा, ये पास्टर आमिर साहब ने, जब मैं पाकिस्तान आया था उन्होंने दिया था। तो ये देखो बाइबल कितनी खूबसूरत लगती है। ये है, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं कि जब आपके अंदर किसी चीज को खूबसूरत बनाने की फिक्र होती है, फिर आप उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेरी बाइबल है। इसी तरह से अगर आपके अंदर ये ख्वाहिश है कि कलाम को मैं अच्छी तरह समझूं, तो फिर अच्छे उस्तादों को चुने। आजकल बहुत ज्यादा रिवाज चला हुआ है कि हर कोई अपने साथ बिशप लिखता है, कोई डॉक्टर लिखता है, कोई कुछ लिखता है। लेकिन ये सारा कुछ उस वक्त अच्छा या सोना लगता है अगर आप हों, अगर आपके पास इतना इल्म हो, डॉक्टरेट की हो, थीसिस लिखे हों, कोई बात नई आपको खुदा ने दी हो जो सामने आ जाए। किसी की किताबों से चोरी करके मवाद खुद के लिए लिखना, ये औरतों का किरदार है। क्यों? क्यों जैसे मैं बयान कर रहा हूं कि वो बनना चाहती हैं। खुदा, हवा ने, औरत ने क्यों वो फल रोका हुआ ले लिया? वो चाहती थी उसका खानदान नुमाया नजर आए, खुदा की मानत। इब्लीस ने कहा जब तुम ये फल खा लोगे तो तुम खुदा की मानत हो जाओगे। तो खुदा का रोका हुआ फल, खुदा की रखी हुई चीज उसने ले ली। किसी की किताब ले लेना और उसको अपने नाम से मंसूब कर लेना, ये किरदार देखो किसका है। अगर आप अपनी कुर्बानी देते हैं अपने खानदान के लिए, हम मां मरियम की तरह अपना टाइम देते हैं दुआ के लिए, तो ये किरदार है पॉजिटिव। अगर आप किसी दूसरे की चीज लेते हो तो ये इस तरह का किरदार होगा जो आदम का नहीं है। अगर बहनें ऐसा काम करें तो अच्छा है, लेकिन अगर भाई ऐसा काम करते हैं तो ये खुदा के सामने नामुनासिब है। क्योंकि बहनें जो हैं वो, उनके अंदर एक ही फिक्र है हर पल, और वो फिक्र है कि नुमाया नजर आए। भले ऊंची जूती पहन के 4 इंच की हील पहन के, या हुक्म ही खुदा का तोड़ के जैसे औरत ने किया, हवा ने किया, या इस तरह से किया जाए कि अपनी कौम के लिए खुद को पेश कर दिया जाए। ये औरत का पॉजिटिव किरदार है। और औरत को औरत रहना चाहिए, अपने खानदान के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी नेशन के लिए औरत को औरत का किरदार अदा करना चाहिए। खुशखबरी के लिए कि मरियम ने जाके यीशु के जी उठने का
खूब ऐलान कर दिया। अगर मरियम हम देखते हैं मूसा की बहन, तो पहली वो औरत है जो समुंदर से निकल के उसने खुदा की तारीफ की। तारीफ करना भी औरत का काम है। बेटियां, बहनें क्वायर्स में खूब गीत गा सकती। कई ऐसे भी मैंने भगत देखे हैं, वो कहते हैं जी औरत को कलीसिया में चुप रहना चाहिए। भाई किस तरह आप जाओ जाके सही तरह किसी जगह से बाइबल पढ़ो, जाओ सीखो जाके, क्योंकि औरत को बड़ा नुमाया किरदार दिया गया है। अगर नहीं दिया गया तो उसने बना लिया अपना किरदार और उसमें उसने नुमाया पोजीशन हासिल की। मरियम की इस बात को खुदा ने पसंद किया। उसी मरियम की वजह से मूसा मगरमच्छों से बच गया। दरियाए नील में जो बड़े बड़े घड़ियाल थे, मगरमच्छ थे, उनसे उसका भाई बच गया। औरत फिक्र करती है अपने भाई की, औरत फिक्र करती है अपनी औलाद की, औरत फिक्र करती है अपने शौहर की, औरत फिक्र करती है अपनी कौम की, औरत फिक्र करती है निजात के काम की। औरत मैसेज पहुंचाती है फौरन, जल्दी से, जिसकी वजह से यीशु ने कहा कि जा जाके मेरे भाइयों को बता। इसलिए औरत को चाहिए कि वो अपने किरदार की कदर करे, मैदान में आए और जो जो तोहफे खुदा ने आपको दिए हैं, गाने का तोहफा है, पैगाम सुनाने का की नेमत है। अरामी जुबान का लफ्ज है खुबीन, जिसका मतलब है जानना। जितना आपको इल्म है वही आपका जुर्म है। जब आपको किसी चीज का इल्म हो गया और आप उसको दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाते तो आपका जुर्म है। आपसे पूछा जाएगा। हिजकियेल की किताब उसके 3 बाब में लिखा है, अगर जो तुझे बताया गया है तू ना बताएगा तो उसके खून की बाज पुरुष मैं तुझसे करूंगा। लिखा है, शरीर को उसकी शरारत से आगाह कर दे। अगर वो बच जाए तो तूने अपनी जान बचा ली। जिसका मतलब है इल्म आपका रखना आपका जुर्म साबित करता है। आपको इल्म है, आपके पास नेमत है, आपके पास टैलेंट है, तो आप खामोश बैठी हैं जी मैं अपने बच्चों को रोटियां पका के दे रही हूं, मैंने घर का सफाई करनी है। अगर खुदा ने आपको गाने की नेमत दी है तो आप कलीसिया में जरूर गाएं। खुदा ने नेमत दी है, आप अच्छा खाना पका सकती हैं, आप इनकर्ज कर सकती हैं, आप अपनी कौम के लिए जो भी कर सकते हैं वो जरूर करें। तो इससे खुदावंद का मंसूबा खूबसूरत तरीके से पूरा होता है। लेकिन अगर आप वो नहीं करते तो आप यकीनन आपसे हिसाब दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा और फिर आप सोचेंगे कि मैंने क्या किया है। मैं तो सिर्फ अपने बच्चों के खाने के लिए बैठी रही हूं। खाना देना एक हिस्सा है, पढ़ाई उनको करवाना ये भी हिस्सा है, शौहर को तैयार करना ये भी हिस्सा है, कलाम को प्रचार करना ये भी हिस्सा है, स्ताइश करना ये भी हिस्सा है, बाइबल टीच करना ये भी हिस्सा है। सिर्फ और सिर्फ ये खुदा के मंसूबे में मेन किरदार अदा करने वाली जो शख्सियत है वो औरत है।